So the chapter will be ended after discussing these two concepts, Faraday's constant and relevant calculations, or after this we will discuss fuel cells. So we are to discuss Faraday's constant beta. Faraday's constant is represented with this F, and Faraday's constant is actually charge on 1 mole electrons. Charge on 1 mole electrons is Faraday's constant. Okay? Beta, can you tell me that what is the charge on 1 electron? What is the value of charge on 1 electron? Charge on 1 electron. You are not supposed to memorize this. This charge on 1 electron will be there in data booklet. Okay? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है that will be present in the data booklet, and that is 1.60 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay? This is the charge on 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन पे इतने coulombs charge होगा. अच्छा, and when we say 1 mole electrons, so how many electrons will be present in 1 mole electrons? Those will be 6.02 into 10 to the power 23. एक मोल में this many electrons are present. और एक इलेक्ट्रॉन पे charge is this much. So now charge on 1 mole electron, okay, it means कि charge on 6.02 into 10 to the power 23 electrons will be considered as Faraday's constant. ठीक है? एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितना भी चार्ज होगा that charge will be Faraday's constant. Charge on 1 mole electrons will be considered as Faraday's constant. Faraday's constant is represented with F, and we describe a relationship F equals LE. ठीक है? अच्छा, where L जो है, this is Avogadro's constant. Avogadro's constant is L, and E is charge on 1 electron. Charge on 1 electron is E. तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करें, you will get Faraday's constant. Right? So this expression will be asked in exam for 1 mark. F equals LE. So F equals LE represents Faraday's constant, which is equal to charge on 1 mole electrons. Any question, beta? Acha. According to data booklet beta suggests that 1 Faraday's numerical value is 9650 coulomb. Okay? 1 Faraday is 9650 coulomb. This is the value of Faraday's constant, and this value will be available in the data booklet. ठीक है बेटा? अच्छा. Now how to use all this data? How to use this data? बेटा कोई क्वेश्चन है तो यस कीप आस्किंग. आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट विल बी नोन एज फेराडेज कांस्टेंट. जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा दैट विल बी फेराडेज कांस्टेंट. फेराडेज कांस्टेंट इज F, दैट इज इक्वल टू L. L एवोगाड्रोस कांस्टेंट है. L इज 6.02 into 10 to the power 23, और E चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे. एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है. ठीक है? तो ये सारे नंबर्स डेटा बुकलेट में अवेलेबल हैं. L इज प्रेजेंट इन डेटा बुकलेट, E इज प्रेजेंट इन डेटा बुकलेट. सो F इज फेराडेज कांस्टेंट. इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें बेटा, ये जो नंबर्स हैं ना ये राउंडेड ऑफ हैं. तो जो रियल वाले नंबर्स हैं फेराडेज कांस्टेंट के और चार्ज के, उनको मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 9650 कूलम्स. ठीक है बेटा? सो this is the concept of Faraday's constant, which is charge on 1 mole electron. अगर आपके पास डेटा बुकलेट है तो yes, you can see this F, and
एक मिनट, आई एम टेकिंग आउट डेटा बुकलेट बेटा. इफ यू हैव डेटा बुकलेट, सो डेटा बुकलेट में you have to take out page number, this is page number 3. So page number 3 में you can find, हाँ बेटा, Faraday's constant is 96500 coulombs. Okay, sorry, it's 96500 coulombs. This is the value of Faraday's constant. ठीक है बेटा, Faraday's constant is 96500 coulombs. ठीक है. अच्छा, अब बेटा suppose if I write an equation at cathode. Suppose I'm taking this equation. Aluminum ion takes 3 mole electrons to convert into aluminum. ठीक है. अब this equation is suggesting क्या? What it is suggesting कि 3 mole electrons are required to deposit 1 mole aluminum. Right बेटा? हम इक्वेशन से ये रिलेट कर सकते हैं. तो अब 3 mole electrons is 3 Faraday. 1 mole electrons पे जो चार्ज होगा that will be 1 Faraday. ठीक है. 1 Faraday is charged on 1 mole electrons, और 3 mole electrons पे जो चार्ज होगा that will be 3 Faradays. So 3 Faraday's charge is required to deposit 1 mole aluminum. अच्छा, अब 3 Faraday is means 1 Faraday is 96500 coulombs. 3 into 96500 coulombs is required to deposit 27 gram Al. क्योंकि एल्यूमिनियम का AR of Al is 27 point something. ठीक है बेटा. जी जी बेटा. अब देखो, मैंने ये पढ़ाया अभी तक, जो बच्चे बाद में आए हैं बेटा, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज 1 फेराडे. ठीक है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 1 फेराडे. फेराडे इज F. व्हाट इज फेराडे? इट इज इक्वल टू L into E. तो L इज 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज L. L इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट. 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आपके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो 1 मोल पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल पे चार्ज होगा 96500 कूलम. ये सारी वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएंगी. ठीक है, डेटा बुकलेट में ये सारी वैल्यूज होंगी. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है दैट इज फेराडेज कांस्टेंट. राइट. अच्छा, सपोज अब इसको यूज कैसे करना है? एनोड पे सपोज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट एनोड. ओके, तो आप बताएं कि व्हाट दिस डेटा इज सजेस्टिंग यू. हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल क्लोरीन गैस. ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड विद 1 मोल क्लोरीन गैस. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज 2 फेराडे. ठीक है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज 1 फेराडे. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज 2 फेराडे. तो 2 फेराडेज इज रिलेटेड विद 1 मोल क्लोरीन गैस. अच्छा, 2 फेराडे की वैल्यू है बेटा 96500 कूलम्स. तो 2 into 96500 कूलम्स इज रिलेटेड टू 24 dm क्यूब गैस, क्योंकि 1 मोल में 24 dm क्यूब गैस होगी एट RTP. Any question here, beta? At RTP, itne coulombs will be related to 24 dm cube gas. जी beta, any question? नहीं sir. I hope you will be able to relate this Faraday with corresponding mass or volume. ठीक है. अच्छा, अब बेटा देखिए नेक्स्ट डिस्कशन. आप, I think you have studied this in your physics concepts. Q equals I into T. I hope you know this. Now Q is charge and unit of Q is coulombs. I is current. Unit of I is ampere, and T is time. So unit of time is second. So we use this expression Q equals I into T. ठीक है. अच्छा, अब suppose कि this kind of question is given to you. Okay, the question is कि electrolysis of
of molten NaCl. A molten NaCl is done for 30 minutes with 10 ampere currents. With 10 ampere current. 30 minutes तक electrolysis हुई with 10 ampere current, and you are to calculate mass of sodium deposited and volume of chlorine gas evolved. So how would you calculate these two things? तो उसके लिए सबसे पहले पहले कूलम you निकाल। हाँ पहले you should apply this relationship Q equals I into T. तो I is current which is 10 ampere is the current, or time should be taken in second. So 30 minute means 30 into 60 seconds. Okay, 30 minutes को you have to convert into seconds. So altogether 60s are 18, 1, 2, 3. इतने coulombs. It means that you passed this much coulomb during electrolysis. ठीक है, इतने कूलम पास किया हमने इलेक्ट्रोलिसिस में. आई होप बेटा ये क्लियर है यहां तक. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है बेटा? मोल्टन NaCl की हो रही है. So you know what happens at cathode and what happens at anode when molten NaCl is electrolyzed? जब molten NaCl is electrolyzed, so what happens at cathode and what will happen at anode? What will happen at anode? तो कैथोड पे जी बेटा बताएं, जी बताएं बेटा. What will happen at cathode? Molten NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. से कैथोड पे रिडक्शन होगी। हाँ, Na1 प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन इट गोज टू Na. ठीक है, और मोल्टन NaCl के केस में एनोड पे 2 क्लोराइड will convert into Cl2 plus 2 mole electrons. ठीक है. अच्छा, नाउ हाउ टू रिलेट दिस. ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर डिपॉजिटिंग 1 मोल Na. ठीक है, ये इनको हम रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिटिंग 1 मोल Na. अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी 1 फेरेडे. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज 1 फेरेडे. चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेरेडे, और 1 मोल सोडियम इज 23 ग्राम्स. ठीक है. अच्छा, अब 1 मोल फेरेडे इज 96500 कूलम्स अकॉर्डिंग टू डेटा बुकलेट. अकॉर्डिंग टू डेटा बुकलेट 1 फेरेडे इज 96500 कूलम. तो इसका मतलब है 96500 कूलम्स अगर पास करें तो 23 ग्राम सोडियम के डिपॉजिट होते हैं. लेकिन एक्चुअली हाउ मच कूलम्स आर पास ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस? एक्चुअली 18000 कूलम्स आर पास्ड. तो उससे कितने ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगी? So simply with this cross multiplication, you will be able to calculate. You will be able to calculate. बस इसको आपने cross multiply करना है, and you will get कि कितने grams sodium will be deposited. ठीक है? Now on the other hand, for this chlorine, 1 mole chlorine gas है and 2 mole electrons है. So for 2 mole electrons, 1 mole chlorine gas evolved. So 2 mole electrons is 2 Faraday. तो 2 फेरेडे से 1 मोल गैस इवॉल्व हो रही है. 2 फेरेडे इज 96500 कूलम अकॉर्डिंग टू डेटा बुकलेट. एंड 1 मोल गैस अगर आरटीपी है, एग्जामिनर विल गिव यू कंडीशन. ओके, आरटीपी पे 1 मोल गैस इज 24 DMQ. ठीक है, लेकिन एक्चुअली कितने कूलम्स पास हुए हैं? एक्चुअली इतने कूलम्स पास हुए हैं, 18000 कूलम्स पास हुए हैं. इससे कितने DMQ प्रोड्यूस होगा? यस, यू कैन कैलकुलेट. बस इससे x को आप कैलकुलेट करें, x विल बी इन DMQ, whichever the answer is. बेटा समझ आ गई? You will receive these kind of questions. Okay, you are allowed to ask question if you have question. No question? अच्छा बेटा, what about this thing? If they say K, सर आगे सर। अच्छा okay. Now if they say K electrolysis of concentrated copper sulfate solution is done with 10 amperes current, 10 ampere current and 0.23 gram copper deposited. So time for electrolysis. Time for electrolysis.
जी बेटा, हाउ वुड यू कैलकुलेट टाइम फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस? सर इसके कूलम निकाल देंगे कितने चार्ज है। देखो, वन रिलेशन इज दिस दैट Q इक्वल्स I into T. ओके, तो here you only have I, you don't have any Q, you don't have any time. सिर्फ आपके पास I की वैल्यू है which is 10. How to proceed बेटा? सर क्यों निकाल लेना कहते हैं वो कॉपर वाले से। अच्छा, आप जब आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एट कैथोड कॉपर विल डिपॉजिट. ओके, कॉपर आयंस will take 2 electrons from cathode, will deposit as copper. तो अब ये देखें, इसमें 2 mole electrons producing 1 mole copper and 2 mole electrons is 2 Faraday और 1 mole copper. So 1 mole copper का mass कितना है? 63.5. AR of copper is 63.5. So 2 Faraday is 2 into 96500 coulomb. Say 63.5 gram deposit हो रहा. And actually, how much copper is deposited? How much copper is deposited? 0.23 gram copper deposited. So this X will be coulombs. You will come to know कि how many coulombs are required जो 0.23 gram copper deposit कर रहे हैं. जी सही बात हैदर, can you calculate this X? Anyone in the class can calculate this X? सर एक मिनट। जी बेटा, if you can calculate this X. सर एक मिनट कर रहा हूँ। अच्छा, okay. So here this T will be unknown and this Q is coulomb, so ये coulomb will be X. Whatever the value of X we get, we will place this value here for this Q. And then we will be able to सर 699.1 699.1 coulomb. Okay, so just place this 699.1. So the whatever time you get here, that time will be in seconds. अगर बहुत बड़ा number हो तो you can convert that time into minutes या you can convert that time 70 into यार hours as well. कितना आ रहा है बेटा? 69.9 69.9 seconds आ रहा है. जी सर। अच्छा ठीक है, बस whatever the answer is. अच्छा ना बेटा, अगर मैं आपको डेटा बुकलेट से 2 इक्वेशंस बताऊं या चलें एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे. अच्छा, let me discuss beta this thing, calculation of Avogadro's constant. This is also very important concept, calculation of Avogadro's constant. This concept is also very important. आपने Avogadro's constant को कैलकुलेट करना है. You need to show कि 1 mole is related to 6.02 into 10 to the power 23 particles. अच्छा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट के लिए एग्जाम में डेटा विल बी गिवन. ओके, यू विल बी गिवन डेटा. अच्छा, वो डेटा इज लाइक दिस के लेट्स से कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये गिवन है, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, mass of copper deposited will be given. कॉपर का कितना mass डिपॉजिट हुआ ये गिवन होगा. करंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस दैट विल बी गिवन. टाइम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस दैट विल बी गिवन. ठीक है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये यू विल टेक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेटा बुकलेट विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. करंट इस केस में गिवन है 0.15 एम्पेयर. Time for electrolysis is 1 hour and mass of copper deposited is 0.178 gram. अच्छा बेटा, अब इससे हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? How to calculate Avogadro's constant with this data? पहले तो ये बताएं कि 1 आवर में सर कितने मैथ्स सेकंड को होंगे? सर मैथ्स को मूल से कन्वर्ट करेंगे क्या? पहले चार्ज निकालेंगे। अच्छा, वैसे ये 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? पहले से कन्वर्ट करें. सर 60 into 3006
सर 60 विच इज 3600 सेकेंड्स। पहले तो 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। अच्छा चलें जी बेटा, आप देखें बेटा, सबसे पहले इस डेटा पे आप ये अप्लाई करें, Q इक्वल्स I इंटू टी अप्लाई करें। ठीक है, कि आपको पता चले कि कितने कूलम्स इलेक्ट्रोलिसिस के में पास हुए हैं। तो I इज 0.15 एंड T इज 3600। जी बेटा, ये बात क्या इससे बना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? पहले तो ये Q कैलकुलेट करें। ठीक है जी, क्या बन रहा है बेटा? सर 540 आएगा। सर एक मिनट 36 540 आ रहा है। 546 540 कूलम। ओके, ये स्टेप 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, आप देखिए कितना मैस डिपॉजिट हुआ, इतना मैस डिपॉजिट हुआ। ये जो मैस डिपॉजिट हुआ ये इन कूलम्स की वजह से हुआ। 540 कूलम पास हुए थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, तो इतना मैस डिपॉजिट हुआ कॉपर का। ठीक है, तो 1 मोल कॉपर के लिए, कॉपर का बेटा AR है 63.5। ठीक है, तो 1 मोल अगर मैं यहां लूं 63.5 ग्राम कॉपर, तो ये 1 मोल कॉपर हो जाएगा। तो 1 मोल कॉपर के लिए कितने कूलम्स पास करेंगे? दिस इज एक्स। तो ये एक्स कैलकुलेट कीजिए बेटा। एक्स जो है वो 1 मोल कॉपर के लिए कूलम्स हैं। सर ये आ रहा है 192640 192640 कूलम्स। 0 640, 2 जीरो एंड में सर एक बस जीरो। यही है। हाँ ठीक है, इतने कूलम्स से 1 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखें थर्ड स्टेप में। तो जो एनोड पे कॉपर आयन डिपॉजिट होंगे उनकी इक्वेशन विल बी लाइक दिस। अब ये इक्वेशन क्या सजेस्ट करिए कि 2 फेरेडे से कितने मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल कॉपर, यानी 2 फेरेडे से 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, अब बेटा इसको, ये और ये सेम है, तो कैसे रिलेट करेंगे? क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? 2 फेरेडेस को इतने कूलम्स के इक्वेट कर सकते हैं? जी सर। ठीक है बेटा, सब बच्चों को क्लियर है? ये दोनों सेम है, रेशो है ना, लेफ्ट पे भी रेशो है, राइट पे भी रेशो है। तो जब 63.5 सेम है तो फिर इसका मतलब है कि ये 2 फेरेडेस वो इक्वल हैं इतने कूलम्स के। ठीक है, तो 2 फेरेडेस हमें पता चला, अगला स्टेप ये कि 2 फेरेडेस हमें पता चला कि वो है 192640 कूलम्स के। तो फिर 1 फेरेडे कितने कूलम के इक्वल होगा? इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 99320 96320 कूलम्स, 0 तो 1 फेरेडे। हाँ, ये हमें पता चला कि 1 फेरेडे इतने कूलम्स के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये रिलेशनशिप अप्लाई करें, F इक्वल्स एल ई। F इक्वल्स एल ई, एफ हमने ये कैलकुलेट किया, दिस इज F इज 96320, L इज अननोन और E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये डेटा बुकलेट में होगा ये चार्ज। तो आप बेटा कैलकुलेट करें L। L इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। L विल बी, जी क्या आ रहा है बेटा? L happens to be 6.02 into 10 to the power 23. So which is Avogadro's constant? ठीक है बेटा, now this calculation is important. ये you need to know। अगर आप चाहते हो एक और क्वेश्चन इस तरह का हो तो मैं करवा देता हूं। इज दिस क्लियर, या यू वांट मी कि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन करवाऊं? सर क्लियर है। जी बेटा, बाकी बच्चे इसी तरह का कोई और क्वेश्चन करवाऊं जिसमें एवोगाड्रोस कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना पड़े? सर हाल एक क्लियर है लेकिन। चलें एक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके वेट बेटा, ये क्वेश्चन विजिबल है? कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 7? जी सर। अच्छा, yes, what part A says state relationship between Faraday's constant charge on 1 electron and Avogadro's constant, so the relationship is F equals LE। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी है कि कॉपर डिपॉजिट हुआ है बाय टेकिंग कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की है, तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है। तो आई होप ये उस दिन हमने डिस्कस भी किया था। इलेक्ट्रोलिसिस के डायग्राम में व्हाट यू नीड पावर सोर्स के टर्मिनल्स आपको मेंशन करने हैं, एंड देन दिस इज एनोड, एंड हियर यू नीड टू ड्रॉ कैथोड, एमीटर ठीक है। एंड ऑब्वियसली बीकर और कंटेनर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर, एमीटर भी। हाँ, इसमें आपको एमीटर शो करना है, एमीटर का एक मार्क है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का डायग्राम होगा ना। उसके बाद ये डेटा गिवन है बेटा आपको कि करंट इज इतने एम्पेयर, टाइम इज 30 मिनट, तो 30 मिनट्स मीन्स 30 इंटू 60 करें, सो दैट इज 1800 सेकेंड्स। अच्छा बेटा, मैस ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? मैस ऑफ कॉपर इन विच दोनों इज का डिफरेंस। डिपॉजिटेड, हाँ कितना आ रहा है बेटा? मैस ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना होगा? जीरो 0.299 है। मेरा मेरा 0.308 आ रहा फिर देख लो। है। 52। जी सर, क्या? 299। अच्छा ओके, पहला स्टेप बेटा क्या था? Q इक्वल्स आई टी करना है। आई कितना है आपके पास? 0.5, और टी कितना है? 1800। तो यस, दिस Q हैपेंस टू बी 900 कूलम, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में बेटा क्या करना है कि इस 900 कूलम को आपने रिलेट करना है 0.299 ग्राम कॉपर से, क्योंकि ये जो कॉपर डिपॉजिट हुआ ये 900 कूलम की वजह से हुआ। तो 1 ग्राम कॉपर इज 63.5 कॉपर, बिकॉज ए आर ऑफ कॉपर इज 63.5। तो 63.5 ग्राम के लिए कितने कूलम इन्वॉल्व होंगे? दैट इज एक्स। तो दिस, मेरे पास ये सॉल्व है इसलिए मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, 955,608.6 कूलम, यानी इतने कूलम से 1 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। अब अगर इक्वेशन को कंसल्ट करें कैथोड पे, दिस इक्वेशन विल बी देयर। तो 2 फेराडेज रिलेटेड टू 1 मोल कॉपर, तो 2 फेराडेज रिलेटेड टू 63.5 ग्राम कॉपर, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये 63.5 और ये 63.5 ये दोनों सेम हैं। तो जब ये सेम है तो इसका मतलब है कि ये 2 फेराडेज और इतने कूलम्स ये भी सेम होंगे। तो 2 फेराडे फिर इक्वल होगा 95568.6 कूलम के। तो फिर 1 फेराडे निकाल लें। 1 फेराडे विल बी हाउ मच? ठीक है, इधर से बस ये अब मेरे पास वैल्यू नहीं है। 1 फेराडे की बेटा वैल्यू टेक आउट कर लें। 47। सॉरी, सर, 47 नहीं नहीं बेटा, आई 4778 थिंक ये वैल्यू जरा निकालो, ये एक्स कैलकुलेट करो। सर, ये एक निकालने के मिनट ये एक्स निकालो पहले, ये मैं देख रहा हूँ ठीक है कि नहीं। से गलत है। हाँ, 191 एक मिनट। 137 क्या है? 191 137। 137 कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर 191137 कूलम। अब ये निकालो 1 फेराडे की। 95569। 9569, ठीक है। तो अब ये रिलेशनशिप यूज करो, F इक्वल्स एल ई। तो F इज 95569, L इज टू कैलकुलेट, और E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है। तो जस्ट कैलकुलेट L, ठीक है। L will come out to be 6.02 into 10 to the power 23। सॉरी, L आपके पास ये आ रहा है बेटा 5.97। तो ठीक है, ये 5.97 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। 5.97 into 10 to the power 23, which is approximately equal to Avogadro's constant, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दूं, और वो सिचुएशन ये है कि अगर डाइक्रोमेट आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स विद 10 एम्पेयर करंट, ये क्वेश्चन हो
तो mass of chromium deposited, ये कैसे करोगे आप? तो डेटा बुकलेट से डेटा बुकलेट से पहले की डेटा बुकलेट से, अच्छा मैं डेटा बुकलेट फिर ओपन करूं। सो बेटा डेटा बुकलेट ये है, ठीक है, नजर आ रही है बेटा डेटा बुकलेट? जी सर। बेटा कैन यू सी डेटा बुकलेट? हेलो, जी सर। जी सर। नजर आ रही है? इसमें कौन सी इक्वेशन आप सेलेक्ट करेंगे? एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको मैं डेटा बुकलेट को मैं इधर ही ओपन करूं। डेटा बुकलेट ये है जी बेटा, अब नजर आ रही है? कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे? सर एक एक तो बहुत बड़ी जो लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन? Cr2। सर दो करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। हाँ, दो क्यों करेंगे, शाबाश बेटा, गुड। ये इक्वेशन एक सर सेलेक्ट करें क्रोमियम। ना, ठीक है, मैं बता, ये जो इक्वेशन थी ना, हमने डेटा बुकलेट से सेलेक्ट की, Cr2O72 माइनस प्लस 14 protons plus 6 electrons and it goes to 2 chromium 3 positive plus 7 H2O, इसकी नॉट वैल्यू प्लस 1.33 है। अगर ये इक्वेशन हम सेलेक्ट करें सिर्फ ये, तो इसमें क्या मसला है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। हाँ, इसमें क्रोमियम डिपॉजिट नहीं हो रहा, हमें चाहिए क्रोमियम डिपॉजिट करवाना, और इसमें क्रोमियम 3 बन रहा है। समझ आ रही है बेटा? इस इक्वेशन में क्रोमियम 3 बन रहा है और हमने क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जिसके लेफ्ट पे डाइक्रोमेट हो और राइट पे क्रोमियम मेटल हो, लेफ्ट पे डाइक्रोमेट हो और राइट पे क्रोमियम मेटल हो। तो इसका मतलब है एक और इक्वेशन भी हमें सेलेक्ट करनी है, उसको ऐड करना है इस वाली से। तो दूसरी इक्वेशन फिर कौन सी सेलेक्ट करोगे? सर इसको एक छोड़ के ऊपर। ये वाली? जी सर। ये इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू क्रोमियम, ये है क्रोमियम 3 प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन एंड गोइंग टू क्रोमियम, ठीक है। ये नॉट वैल्यूज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम फ्लिप वगैरह नहीं कर रहे, हम एक सिंपल कॉमन इक्वेशन बना रहे हैं। ये क्रोमियम है। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी। क्यों बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया? क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैंसिल करने के लिए। तो दैट कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैंसिल हो जाए लेफ्ट और राइट पे। अब आपके पास जो एक इक्वेशन बनी है वो सी क्रोमियम डाइक्रोमेट है, प्लस कितने 14 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब आपके पास 12 हैं, 12 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मोल इससे क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है और 7H2O बन रहा है, राइट। तो अब सर आप जी, रिवर्सिबल एरो हटा दिया आपने। रिवर्सिबल एरो मैंने हटा दिया, क्योंकि कैथोड पे यही रिएक्शन होगा ना, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैथोड पे ठीक रिडक्शन है होती है ना, इसलिए मैंने सही है रिवर्सिबल सर। एरो हटा दिया कि इसको मैंने रिडक्शन बनाना है। अब तो मुझे कंफर्म है ना कैथोड पे रिडक्शन करवानी है। तो अब इस इक्वेशन में क्या आपको समझ आ रहा है कि कितने 12 फेराडेज, 12 फेराडेज से कितने मोल क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है? 2 मोल क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है। तो 12 इंटू 96500 कूलम से क्रोमियम का ए आर बेटा क्या होगा? क्रोमियम का ए आर सर नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता? क्रोमियम का ए आर बेटा इधर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा आप लगाओगे Q इक्वल्स आई इंटू टी। तो अब देख लो इसमें इसमें फेरेडेस आई क्या, निकालना नहीं था। नहीं इसमें फेराडेज नहीं, इसमें तो ये करना ना मैस, ये तो अलग क्वेश्चन है, मैस ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट करना। सही है। इसमें ये क्वेश्चन है ना, मैस ऑफ क्रोमियम आपने पता करना कि कितना मैस क्रोमियम का डिपॉजिट हुआ। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि ये आपको आइडिया हो कि दो हाफ सेल इक्वेशंस को आपने ऐड भी करना पड़ सकता है। जब जब गिवन और रिक्वायर्ड एक ही इक्वेशन में ना हो, जब गिवन थिंग अलग इक्वेशन में हो, रिक्वायर्ड अलग इक्वेशन में हो, तो फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, ठीक है। तो अब ये टाइम आपके पास 30 मिनट है और करंट आपके पास 10 एम्पियर है। तो टाइम आपके पास कितना है? करंट 30, सॉरी, करंट 10 है और टाइम 30 है। करंट 10 है, 10 और करंट 30 इंटू 60 कर लें, तो ये हो जाएगा 18000 कूलम्स। तो ये 18000 कूलम्स बेटा इधर करके इधर एक्स निकाल लो। अब ये जो एक्स है ये आपको देगा मैस ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट।